Good evening, everybody. So this is Suprakash here. I'm from Bangalore. I'm from Save Indian Family Foundation, and along with me, I have uh, the co-founder of Save Indian Family Founder, Mr. Anil Kumar, and Mr. Shashank Sinha, and we are expecting one more guest, uh, Mr. Sham. He's also an active member of Save Indian Family Foundation. Today, we are going to discuss on the recent um, issue that is going on our Member of Parliament, Mr. Anubhav Mohanty. So he got uh, a domestic violence case against him in the Odisha High Court, and it came to our knowledge some time back that he had filed a divorce case against his wife some time back, and regarding that, today's discussion we will have. Uh, so we have our co-founder member, Mr. Anil Kumar from Hi Save Indian guys. Family Foundation. Yeah, welcome Anil to this Hi. panel. So we have Sashank from Hazaribagh. He has joined. Uh, Hi everyone. Hi. well, Anil, I would like to have your opening remarks on this ongoing issue. So, could you please update us on this and what all things are going on, and then we will proceed with our discussion further. Well, this person Anubhav Mohanty, he was an actor. Okay. He's in 30s. He was an actor and he married an actress in year 2014. That was 6 years back. And I think they are not really. They were like kind of separated since last 1 year. Even though she is staying in her parents' house. So most probably that house belongs to her, his father, the actor turned member of parliament, his father. So he became a member of parliament from a prestigious constituency in Odisha on last year. So he is from Biju Janata Dal. He is not from BJP. Okay. So his government is in the ruling power, ruling position in Odisha. So when he filed a divorce case in Patiala House Court in Delhi, and he has a lawyer in Delhi called Supreme Court lawyer in Delhi. I think his name is Ashish something. Ashish something, yeah. So he has a lawyer and he filed the case, and then wife filed a domestic violence case in Cuttack in return, as a bounce. So she came back at him with a domestic violence case, and now she's demanding something like 15 crores. That means Wow. 150 million rupees she's asking. And at the same time, she has occupied the house. She is staying in the house. That means it is very problematic because she can call police whenever she wants to. She can do whatever. She has all the choice to do whatever nuisance or domestic violence or everything she can do there. And Anubhav Mohanty's parents are like hostage in that house. See, because that house belongs to them and they are also staying there, and his father seems to be not well. He's sick and he has a kidney problem. He's going through dialysis. So this has become a big mess, right? And so this all is being racked up by the media. There are some opponents. He has got some opponents in media, political opponents also, and media opponents also. Mhm. So this entire thing is now being played in social media, mainstream media, and everything, just like some kind of a Big Boss reality TV. Okay. Okay. So uh, I remember, like, when I heard about this issue for the first time. पहली बार जब मैं इस इशू के बारे में मुझे पता चला, आई वॉज रियली शॉक, लाइक सच ए काइंड ऑफ इंसिडेंट हैपेंड, एंड an MP, member of parliament of this country,
and he has been accused of this kind of allegations. और वहाँ पे मैं देख रहा था, ये एक न्यूज़ चैनल, हमारे उड़ीसा में एक न्यूज़ चैनल, उसका लाइव सेशन चल रहा था, फेसबुक लाइव चल रहा था। उस फेसबुक लाइव में मैं ये देख रहा था कि सारा जो सिंपैथी है, the sympathy of the entire public was going towards the female, that is towards Varsha Priyadarsini rather than for Anubhav Mohanty. ये क्या ट्रेंड है अभी? जैसे अभी सुशांत सिंह राजपूत का हमारा इंसिडेंट हुआ, एक आदमी के खिलाफ एक औरत ने इतना खतरनाक साजिश किया, साजिश करने के बाद इतना सब लोग, मतलब पूरी पब्लिक, पूरी कंट्री ये सारी बातों को जानती है, बहुत अच्छी तरह से जानती है। लेकिन इसके बावजूद जब एक आदमी के खिलाफ कुछ इस तरह का केसेस होता है, फॉल्स है या ट्रू है, ये तो अदालत डिसाइड करेगा बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। तो ये जो केस हो गया, उसके बावजूद, सुशांत सिंह राजपूत का केस होने के बावजूद कि औरत इस लेवल तक जा भी सकती है, इसके बावजूद सारा सिंपैथी जो है वर्षा प्रियदर्शिनी की तरफ हो रहा था। ये क्या मतलब, ये सारी जानकारी होने के बावजूद लोगों का एटीट्यूड ऐसा क्यों है? आप इसके बारे में थोड़ा रोशनी डालेंगे? ये लोगों का एटीट्यूड जो है वो यही है कि औरत कभी गलत नहीं हो सकती। ओके। औरत माता होती है, देवी होती है, औरत कभी गलत नहीं हो सकती, गलती सब आदमी का है। कोई शादी टूटता है तो गलती आदमी का है, क्योंकि उसने बचा नहीं पाया शादी को, या औरत को कन्विंस नहीं कर पाया, औरत को कंट्रोल में नहीं रख पाया, नहीं तो औरत को कन्विंस नहीं कर पाया, औरत को समझा नहीं पाया। अरे आप औरत को समझा देते। उनका ये जो समाज की सोच है कि औरत को आदमी समझा देगा और समझाने से औरत समझ जाएगी। ओके, मतलब ये ऐसा एक ड्रामा, ये जो है जैसे मतलब सदियों से चल रहा है। जैसे सोचिए इंदिरा गांधी के जो हस्बैंड थे, वो क्या इंदिरा गांधी को समझा दिए? कभी नहीं। ये मतलब रेखा के हस्बैंड रेखा को समझा दिए? मतलब कोई इतने नहीं समझा सारे मतलब औरत को समझाना है तो समझा दो। लाइक कौन किसको समझा रहा है? कौन किसके बात सुनने के लिए तैयार है? ऐसे ही समझाने से औरत बैठी है, चलो आओ मुझे समझा दो, मैं समझ जाऊंगी। अरे भाई सर ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि औरत को समझाने का मतलब है दीवार पे सर फोड़ना। एग्जैक्टली। क्या आप मतलब औरत को क्या समझा दोगे? मतलब मामला कोर्ट, पुलिस स्टेशन, पुलिस घर में आ चुकी है, अब मतलब कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है, एंड ये लोगों का ये तो अनकंफर्टेबल है दोनों के लिए। मामला पूरा पब्लिक में है, बेइज्जती हो रही है, तो आप क्या है मतलब क्या समझा दोगे आप एक दूसरे को? कैसे समझा दोगे? नहीं चलो हम घूमने चलते हैं, हनीमून पे फिर से चलते हैं, 6 साल के बाद में स्विट्जरलैंड चलेंगे, एक बार अमेरिका जाके आ चुके हैं, फिर से जाएंगे। ऐसे समझाओगे? क्या समझाओगे? मतलब मैं आपके नाम पे क्या है वो जान भी लुटा दूंगा और सम ड्रामा यू विल डू, या नहीं तो आप क्या करोगे? मतलब मैं आपके लिए 5-6 बंगलो खरीद लूंगा, बड़े-बड़े घर इमारत खरीद के दे दूंगा, ताजमहल बना दूंगा। मतलब करोगे क्या? मतलब क्या मतलब रस्सी लगा के ऊपर चढ़ जाओगे, ऐसे करके चढ़ जाओगे? मतलब क्या करोगे क्या? मतलब औरत समझ जाएगी। अरे भाई जो औरत को समझना है तो वो तो पहले से ही समझ जाती है। करेक्ट। अभी देखिए एक बात है, मुझे ये चीज क्लियरली पता नहीं है, मैं उसमें जजमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये दोनों 30s में है। सी इसका एज अनुभव महांती इज द एमपी, his age is around 38 39, and this woman is also like 33 34 or whatever. So maybe he expects them to have a child, maybe she does not want a child, we don't know, बाहर में नहीं आया है, but when you should have a child, if you want to have a child, at what age you should have a child? The woman should be in 30s। 40 के साथ 40 45 की एज में तो कोई बच्चा कोई करता नहीं है, right? I mean, I don't know, I mean he has made all these allegations that they don't have a conjugal relationships and all that, वो भी बोल दिया तो वो भी मतलब मीडिया के लिए इश्यू हो गया कि how can you say this outside? अरे भाई औरत ये सब बोल सकती है, औरत कुछ भी बोल सकती है, वो चलता है।
जबकि मर्द बोल दिया तो फिर आपको मिर्ची लग गई। अच्छा, इन सब चीजों में आप मीडिया का क्या रोल देख रहे हैं? मतलब देखो, मीडिया के लिए तो टीआरपी है। हाँ हाँ मीडिया को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मीडिया में भी ऐसे ही है कि उनका दे हैव अ बायस अगेंस्ट मैन एज यूजुअल। सोसाइटी में जो बायस है, सी सोसाइटी वांट्स टू हियर थिंग्स अगेंस्ट मैन, सो मीडिया आल्सो वांट्स टू, सो मीडिया गेट्स मसाला after a long time. Corona time, bad, the cases are every day 3,500 4,000 cases. People don't have entertainment, तो किसी के घर में कुछ हो रहा है, वो एंटरटेनमेंट दे करके मीडिया अपना रोटी सेक रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग वहां बैठ करके अभी बैठ कर अनुभव महांती को एडवाइस दे रहे हैं। जो लोगों ने एक बार भी शादी नहीं किया है, 25 साल का लौंडे, वो बैठ करके अनुभव महांती को एडवाइस दे रहे हैं। तू ऐसा करना चाहिए था, तू वैसा करना चाहिए था। मीडिया का और एक इशू है, अनुभव महांती अल्कोहल पी रहा था। अब वही सेम मीडिया बोलता है रिया चक्रवर्ती गांजा फूंक लिया तो चलता है, उसको लीगलाइज कर दो। तो गांजा फूंकना को ये लोग लीगलाइज कर देंगे। उसने तो थोड़ा विस्की पी गया तो वो बहुत बड़ा क्रिमिनल हो गया। अरे भाई, विस्की पी गया तो क्रिमिनल है, तो इतने औरतें रास्ते में क्यू में खड़ा होकर के विस्की लेके जा रहे हैं, उनको भी क्रिमिनल बना दो ना। सही बात है। तो अनिल, एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अभी वुमेन को लेके जो कोई भी चीज कंट्रोवर्सी की तरफ जा रही है, उसको हमारा लीगल सिस्टम जो है डिक्रिमिनलाइज कर देती है। अभी एडल्ट्री पहले 497 सेक्शन 497 आईपीसी, इट वाज अ क्रिमिनल ऑफेंस। लेकिन अभी जब कोर्ट के सामने ये बात आई तो कोर्ट ने उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया। ये जुडिशियरी का रोल यहाँ पे क्या हो रहा है? नहीं, जुडिशियरी का यही है, औरत अडल्ट्री कर सकती है, आदमी लेकिन डाइवोर्स अप्लाई कर दिया तो क्रिमिनल है। और औरत बोल सकती है बच्चा को अबॉर्शन कर दूंगी, आदमी डाइवोर्स अप्लाई कर दिया तो क्रिमिनल है। औरत बोलेगी कि मुझे कॉन्जुगल रिलेशनशिप नहीं चाहिए, बच्चा नहीं चाहिए, हम दोस्तों की तरह रहेंगे। तो रहो दोस्त की तरह, फिर तो डिवोर्स लेके दोस्त की तरह रहो ना। लेकिन डिवोर्स डालेंगे अब शादी करके दोस्त की तरह रहना है तो रहो फिर, मतलब I mean,